So all of us we read namaz now, alhamdulillah. Come here, Amaya. Amaya, आपने नमाज पढ़ी? क्या किया आपने? मैं उर्दू बोलती हूँ इनके साथ, देखती हूँ कि इनको उर्दू आती है कि नहीं। एला, आपने नमाज पढ़ी? आओ आओ ना, उर्दू में जवाब दो। जमा उर्दू खदत इसको उर्दू नहीं आती। अच्छा, तो अभी हम वे पूरा ये एक मेरे अपने ब्रांड का एक कलेक्शन है अनहा, उसका मैंने ये लगाया हुआ है, बेड पूरा भरा हुआ है। ये इंशाल्लाह अभी चैरिटी के लिए मैं ऑक्शन करूँगी, मैं इसको अभी बेचूँगी ऑनलाइन, चैरिटी के लिए जाएगा। नमाज हमने पढ़ ली, सूरह काफ पढ़ लिया, और अब मैं बच्चों के साथ गपशप लगा रही हूँ थोड़ा सा। ये कमरा इससे कि पैकेजिंग की वजह से मेस्ड अप हो गया, इसको साफ़ करूँगी। ये लोग तो अभी रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, इनका टाइम हो गया, ये खाना खाएंगे अभी। और मैं इंशाल्लाह अभी हमने सूरह काफ पढ़ लिया, नमाज पढ़ ली है, तो अभी हम बस जान नहीं है, अभी तो सिर्फ 2 बजे हैं और अभी भी जान नहीं है, अभी तो 8:30 जाके रोज़ा खुलना है। पर इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। एला, आप उर्दू नहीं बोलती? मेरे उर्दू बोल नहीं है सो यू ट्राई टू से यू डोंट नो उर्दू। आओ सो से मुझे उर्दू नहीं आती। मुझे उर्दू नहीं आती। यूसुफ, आपको उर्दू आती है? यू नो उर्दू यूसुफ? नो? No one know Urdu in our house because we are Pathan. Like Urdu speaking people, they don't know Pashto. Exactly like that, we don't know Urdu. So I know a little adults know. bit. A little bit. You know a little bit, is it? Little bit. I know like about 10 numbers and nothing else. Okay, say 10 number. Ek. एक दो actually I know 5. Okay, ek. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9 9 10. I don't know. I only know 5. Okay then. Yo, dua, dris, lua, pintas, pagua, at ana halat. This is Pashto. Oh. So Pashto yo dua dri salur Somos. Ji. I told you to put it back. So all of you girls. You called me a girl. No, you know a girl. You're a boy. A handsome little boy. And these two are girl. My dad could be. It's okay. It's okay. Daddy Both took me places are good. there. Okay, so Ella, what you gonna say something about Islam? The hadith, I don't know. Yeah, you can say hadith or prophet stories or whatever you want. Look to me. So one hadith, it was that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Beware, the best of you is he who is the best towards his woman, and I am the best among all of you toward my woman." It Okay. means that, like, this hadith means in my own words that if the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. was lovely to women, he was very like polite to them. Yeah. So that means we should be polite to them as well. So if a lady needs a chair, you will go grab one for her or put it down. But if a man does something wrong to a woman, like shouts to her, pushes her, be rude to her, and then on the day of judgment, Allah is gonna ask you that why are you so rude to this woman? Finish. When Ella finish, wait for your turn. Okay, Ella, can you sit here because it's so dark there? Can you sit here, please? Yeah, sure. Yeah, sit here. So, sorry, what you say? So on the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala will ask that man Who was rude toward women? Yeah, and the man will be unconscious and he will say like that, I don't know. And then Allah is going to say you're gonna be punished, and do you know all of the man's good deeds will go to the woman's deeds, and the bad deeds of the woman would go to the man. Subhanallah, mashallah, mashallah. So
you want to say that don't be rude to women. Yeah. The man should respect women. Okay, sit down and talk. Amaya, sit down. Okay, now talk. Yes, Amaya? Yeah. You know, I love this house. Okay, we know you love this house. Say something about Islam. Otherwise, don't call me Somo, okay? We're talking about Islam. So if you know anything about Islam, tell me. Otherwise, no I Somo. know another hadith. Yeah, go on. Say the hadith. So, basically, when the Prophet, Sallallahu alayhi wa sallam. when the Prophet Yusuf, Okay. he was going to a shop, like a mall to in the Egypt. Yeah. Yeah, and then he saw a man. This is one of the hadiths. He saw a man, and the man said to him, "Who are you?" Hmm. Then Yusuf alayhi salam said, I am the Prophet of Allah. Then the man said, "Well, do something to show me, To prove to prove." that you're messenger of Allah. Basically, what he did, Hmm. he grabbed like this kind of thingy. It's like a kind of, do you know the mole rocks? The Okay. one that has like dirty stuff on it. He throwed it on the floor, Hmm. and it was like turned to a massive rock, Oh. like a big one Hmm. that almost covered the man. Hmm. Then on the day of judgment, Allah asked that man, "Why did you do that to Musa alayhi salam?" Then Yusuf alayhi salam. Then the man said that because I was unconscious of what he was saying, and I didn't believe him. That's really bad, isn't it? To not believe your prophets. That's very bad. Mm-hmm. Assalamu alaikum khalko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope you okay, your Ramadan go well. And keep me in your dua, and I keep all of you in my dua. Yes, today recipe we're gonna cook is our vegetarian day today. But I'm gonna make couple of things, but few of my vegetable is already uploaded. So if you want to see one of the recipe which I already uploaded, I will say it, and you can say Mali and Mama and the vegetable name, and it will automatically come. So let me say in Urdu because Nakia is here. Why are you laughing? Look at her. So आज मैं बनाऊंगी चिकन स्टर फ्राई. उसकी मैंने पूरी रेसिपी आपको बताऊंगी. मैं मक्खनी दाल बनाऊंगी, उसकी पूरी रेसिपी आपको बताऊंगी. लेकिन मशरूम मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं. नाफिया आगे से मेरी लिपसिंग कर रही है तो मुझे हंसी आ रही है. So ये सब कुछ अब ये इंग्लिश में कहेगी. So listen, Okay, Amma, go. Yeah. So मशरूम की मैं बनाऊंगी, आपको थोड़ा थोड़ा दिखा भी दूंगी. लेकिन अगर आपको फुल रेसिपी देखनी, ये हंस रही है क्योंकि सामने से नाफिया मेरी बातों I'm के not साथ even saying anything. Okay. So मशरूम आप देख ले मेरे नाम के साथ मली एंड ममा, और देख ले मशरूम टाइप करें तो आपको फुल रेसिपी आ जाएगी. पर मुझे जितना वक्त होगा मैं बताऊंगी. इसी तरह बैंगन का भरता मैं बनाऊंगी. फुल रेसिपी अवेलेबल है यूट्यूब पे, लिखे मली एंड ममा बैंगन का भरता और बैंगन का वटेवर तो आ जाएगा. लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको बताऊं. पर आज की रेसिपी मेनली है मखनी दाल एंड चिकन स्टर फ्राई एंड मेरी टमाटर वाली चटनी. अच्छा. ओके, सो लेट्स बिगिन. अब नाफिया बताएगी इंग्लिश में. खुद दे देना की बस. खुदे देवले नकी बच्चू. Amma, I thought you already said it in English. ना शाबाश. Okay, guys, so we're gonna have some stir fry on the menu, and we're gonna have some mushrooms on the menu, and what we gonna have some Maya? Yeah, but whatever. No, What? छोड़ो फिर. नाफिया नहीं बताएगी Forget. तो मैं क्यों Man, बताऊं? come on, they'll know. Okay, let's begin, guys. Okay, चले शुरू करते I've हैं. got something on my chin. So नाफिया मेरे कैमरे क्यों नीचे करो. Don't direct me, I know. Aha. अच्छा. Ooh, that's nice. मैंने इस चिकन को 5 मिनट के लिए मैंने ब्रेस्ट को लेके, सॉरी वो कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो 5 मिनट के लिए चिकन को मैंने
बॉईल कर दिया था, लेकिन इसमें मैंने चिली मसाला और अपना मिक्स मसाला डाल के मैंने बॉईल कर दिया था। अब वो उस बॉईल को निकाल के थोड़े से पानी में बॉईल कर दिया था। अब निकाल के मैंने 2 स्पून ऑयल में डाल दिया, 2 टेबल स्पून ऑयल, ज्यादा ऑयल नहीं। Okay, so how many chicken breasts? Only 1 chicken breast, One chicken लंबा breast. लंबा काट के। Mum's cut it longitudinally, boiled it. जी, Boiled it. for 5 minutes. 5 minutes. With my mixed masala and chili powder. Yeah, and now she's frying it. That's it. I didn't put anything else. This is a stir fry recipe, okay? Yeah. The chicken stir But fry. you know, stir fry, this is my way. So maybe you watch different ways, but this is my way, okay? Let me show you the rest of the ingredients. This is gonna be frying for 5 minutes. I just keep eye on it, and I'm showing you what I'm gonna put in this. So I cut 4 spring onion, half a big size of onion, 2 carrot, cut it like that, 2 tomato, cut like this. Shape is very important in stir fry, okay? Stir fry. Chili, 2 chili, cut like that. 1 bell pepper, cut it exactly like that, okay? And garlic and ginger according to your taste. If you like it, put it. If you don't, don't. No, because of sabzi. 5 मिनट हो गए इसको भुनने में। मैं थोड़ा सा पिंच ऑफ गार्लिक डालूंगी, बस थोड़ा पिंच ऑफ गार्लिक और पिंच ऑफ मैंने अदरक डाल दिया। Okay, so add garlic and a pinch of garlic and a pinch of ginger. और अभी मैं अपना ब्लैक पेपर, ओनली 1/4 स्पून अपना ब्लैक पेपर डाल दूंगी, 1/4 स्पून जीरा डाल दूंगी। बस यही मेरा मसाला डलेगा और कुछ नहीं डलेगा। Okay, so only use 2 masalas in the chicken. She's used a 1/4 spoon of black pepper and a 1/4 spoon of garam masala. Is it? सबसे पहले पे अपना गाजर डाल दूंगी। Add your carrots first. By the way, somebody left a comment on your thing saying that Yes, in translation, yes. can you not translate everything word for word? They said just She translate. said this is tiring for Nakia. Oh, I She didn't said know so that. whatever you say, only the important thing. Okay, right. Okay. Yeah, because she says it's very tiring for Nakia. अब इसके ऊपर मैं अपना पेपर डाल दूंगी। आप इसी तरह से 1 मिनट के वक्फे से डाल दें। So when you cook carrot, So after the oh, sorry, go on. 1 minute जरूर पकने इसके परेले में। Huh. So after you, at each stage of adding the next vegetable in, make sure that you leave a space of 1 minute. So let the vegetable Okay. that you've already put in cook for about a minute, and then add your other vegetable. दूसरी साइड पे मैंने अपने कुकर में 30 मिनट पे जो ग्रीन वाली दाल होती है, मूंग की दाल, क्योंकि मैं आज जो मखनी दाल बना रही हूँ वो मूंग की दाल से मैं बना रही हूँ, वो मैंने अपने कुकर में डाल दी है और 30 मिनट के लिए ना कोई सॉल्ट डाला है, कुछ भी नहीं डाला, बस इसमें पानी डाल के रख दिया है कि गल जाए। पर मैंने ये दाल 4-5 घंटों से भिगो के रखी थी। Okay. दूसरी So तरफ okay. Can I मैंने translate that? तकरीबन 2 कप किडनी बीन्स भी बॉईल करके रखी हुई है। Okay. So Mom's just saying on the other side, she's put 2 cups. Is it? 2 cup of 2 cups. So she's making makhni dal. 2 cup of makhni dal. Yeah. So 2 moong cups of dal. makhni dal, moong dal, and make sure that you've put in water for how long before you put it in the 4 cooker? hours. 4 hours before. Just soak it. Yeah, soak it. Soak it in water 4 hours before you put it in the slow cooker. And there's also a kidney beans that she's put on the side. 2 cups of kidney beans as well. Yeah. Now अब मेरा जाएगा 2 किस्म के ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियन
एंड मेरे हाफ जो दूसरा मेरा ऑनियन है ये मेरा जाएगा। Okay, she's just added the onion and the spring onions. और अभी ऊपर से मैं थोड़ा सा, मेरा एक नमक है मुश्किल हो जाती है, मैं थोड़ा सा लेमन जूस डाल दिया। It looks really pretty. All the nice और colors. अब मैं अपना wait दिखाओ सुमैया। सुमैया बच्चे ना छोड़ो करो थे Rote. रोजा है तो अंदाजे से मैं डाल रही हूँ। मैंने चिकन को बॉईल करते हुए साल्ट नहीं डाला था, सिर्फ अपना मिक्स मसाला और चिली पाउडर डाला था। अब इसके ऊपर मैं अपना टोमेटो और चिली भी डाल दूंगी। So Mum was talking about the salt. She didn't add the salt to the chicken, but she only added the mixed masala and what else did you add to the thing? And chili powder to the chicken. But right now at this stage she's added salt just before she added the tomatoes in. Is that correct? Yeah. और मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा बंच कोरिएंडर का भी डाल दिया। She's also put a bunch of coriander in there, just a little आप bit. फिर जब गार्निश करेंगे तो उस वक्त भी आप डाल सकते हैं। You can also put it in when you're garnishing. इसको मैं तेज आंच पे 5 मिनट के लिए पकाऊंगी, तेज आंच पे। So let it cook on a high flame for 5 minutes. And I'm getting ready for my mushroom. आपको फुल रेसिपी चाहिए तो देख लेना, लेकिन मैं जब मशरूम बनाऊंगी तो मैं थोड़े से कमेंट के आंसर करूंगी, क्योंकि बहुत आप प्यारे प्यारे मेरे फॉलोअर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे कमेंट्स देते हो और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को, वैसे मैं आप लोगों को जवाब दे देती हूँ, रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन अच्छा होता है कि ऐसे सामने से भी इंसान रिप्लाई करे। So Mum, सामने से भी आपको रिप्लाई करूँगी। so Mum would like to basically reply to the comments that you've been leaving on her YouTube comment section. She just feels Yeah. like you need a... तो मैं साथ साथ लगी हूँ, अपने मशरूम की तैयारी भी कर रही हूँ। तो अगर आपको फिर मशरूम की फुल रेसिपी चाहिए होगी, हम लिंक बायो में भी डाल देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम मशरूम की लिंक डाल देंगे, लेकिन फिर भी कमेंट्स के दौरान मैं आपको बता भी दूंगी कि कैसे कैसे मैं बना रही हूँ, तो इंशाल्लाह मुश्किल ना। ये देखिए, ये मेरा स्टिर फ्राई तैयार है और आप देखिए ओनली 10-15 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं। कभी मेहमान आते हो, घर में हो, बस चिकन ब्रेस्ट पड़ा हो, थोड़ी सी वेजिटेबल पड़े हो, कट कुटा करके ममा के स्टाइल से बनाएं, इंशाल्लाह you will love it. And if you're on a healthy eating diet as well, And if you're in the healthy eating diet, I think it's good for sahur as well, isn't it? it's very good for sahur. So just in piece of bread, put it like that. Have a look how beautiful guys. Yeah. Okay. So मैं मशरूम भी साथ साथ बनाऊंगी। अगर आप लोगों को देखना है तो देख ले, बजाय इसके कि आप मेरे पिछले वाले ब्लॉग में जाए और देखें, और साथ साथ मैं कमेंट्स का जवाब भी दूंगी। तो सबसे पहले मैंने एक प्याज छोटा कटा हुआ डाल दिया मशरूम के लिए, और ये मेरी वे पे मशरूम है जो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से बनाता है। और मैंने डाल दिया 1 स्पून ऑयल, बस 1 टेबल स्पून ऑयल। ये पकता जाएगा और मैं कमेंट के लिए जवाब दूंगी। तो फरहान मोहम्मद हमेशा कहती थी मेरे बेटे का नाम लो, मेरे बेटे का नाम लो। जब से बेटे का नाम लिया हुआ है तब से वो गायब है। तो कहाँ हो लड़की, आओ वापस आ जाओ। Ban Boutique. बाम बुटीक। Nafia, your mama is world best mama yaar. Aap to sirf urdu hi bola kare bich full English. Okay, I don't know. Okay, so Ban Boutique, you always comment on my channel. आप बहुत प्यारे हो। आप नाफिया को भी कहते हो कि आप उर्दू बोलो, आपकी उर्दू अच्छी है। आप मेरी उर्दू की बहुत तारीफ करते हो, जिसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। कभी आप प्यार से
कभी कभी आप प्यार से भी मैसेज भी छोड़ देते हो, मजाक भी कर लेते हो. I really appreciate that. Ban Puti, thank you so much. Mala Bibi. What she said? Baji, just love your cooking vlogs. Don't worry about your pots and Mala pans. Bibi. Thank you so much जानू. मैं आज उन सबको जवाब दे रही हूँ जो रेगुलर बेसिस पे आके मेरे YouTube चैनल पे कमेंट्स करते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस 1000 of you, but I try my best कि किसी को याद कर लिया जाए हर ब्लॉग में. Zahida in London vlogs. Zahida, you always says love you from London, so love you from South Wales. Big smile. Big smile. Yeah. How are you? Sassy lady. Mashallah Mama Jan. Jazakallah. Suraya Khan. Suraya Khan, my favorite follower, alhamdulillah. Always leave comments and always give me so much love. Jazakallah. Sanam Khan. Sanam Khan. You know, whenever I read your name, Sanam Khan, I remember the song, Sanam Khan. So Sanam Khan, Jazakallah. Thank you so much for your love, your support. You always give me support and love and care. Jazakallah. Sandy Rahim. Mashallah looks up to you. Thank you, Sandy Rahim. Hassan Khoshal. Okay, and again a special message for Aksheen. Aksheen, you win my heart. And you know what? I'm gonna keep all your comments as a book. So I'm gonna make a book and one day I will show you. This 1000 Abdullah always left message. Jazakallah. Few of my Pushtun brother always leave message, leave comments, and they want me to speak in Pushto. बिल्कुल पुख्तो के बखबरे को पुख्तो ज़माना मुख्लार में तजरबा डेरा में फ़खदा को पुख्तो डेर खलक न कोईगी को उर्दू और इंग्लिश कोईगी सिर्फ दावा ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश और ये उर्दू के खबरे को. Okay. अभी मैंने प्याज मेरा हो गया है तो थोड़ा सा मैंने गार्लिक डाल दिया, ओनली पिंच ऑफ गार्लिक एंड पिंच ऑफ अदरक मैंने डाल दिया. उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लूँ. मैंने तो आधा चमचा डाल दिया, क्या कहते हैं इसको, काले वाला काला मिर्च, और सिर्फ 1/4 चमचा डाल दिया रेड चिली. बस यही मसाला है, इसमें ज़्यादा मसालों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. और ऊपर से डाल दिया मैंने अपना मशरूम, बारीक कटा हुआ मशरूम मैंने डाल दिया. ये तकरीबन 2 बक्स छोटे मशरूम के थे, लेकिन ये बहुत कम हो जाते हैं पक के. अब इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी. Okay, so we've got put a bit of onions and then garlic ginger. And ginger. Then don't put too many masalas in it. Just put a bit of chili powder and black pepper. Then add your mushrooms. These are 2 boxes of mini mushrooms, but they look quite a lot. But after they get cooked, and you can see how dry is that. Yeah. No oil, nothing. So you It's could only literally today is like more of a healthy eating diet kind of thing, right? Healthy eating iftar. But she's making baklava though. No, baklava is. People can follow the healthy eating iftar, and baklava they can skip. Yeah. ओके, और अभी थोड़ी सी ये बनेगा तो थोड़ी सी गपशप लगा ले. आज हमारा ये अभी 5 मिनट एटलीस्ट मैं स्टेयर करूँगी और इसको घुमाऊँगी, और मैं 5 मिनट आप लोगों के साथ गपशप लगा लूँगी. आप सब जो कहते हो कि मम्मा आप गपशप बनाया करो और आप ब्लॉग भी बनाया करो जैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए, ये सब भी करो. मैंने स्टार्ट किया तो मैं जब तहज्जुद के लिए उठती हूँ तो सब सो रहे होते हैं, क्योंकि ये सहूर से पहले उठ जाते हैं तहज्जुद पढ़ के और अपनी नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं. मैं तहज्जुद के लिए एक दफ़ा उठती हूँ फिर सो जाती हूँ. मैं कहती हूँ कि अल्लाह ज़्यादा खुश हो जाए मुझसे कि मैं 2-3 दफ़ा नींद से उठती हूँ और फिर सोती हूँ. तहज्जुद के लिए उठती हूँ, सो जाती हूँ, फिर सहूर के लिए उठती हूँ और फिर नमाज़ पढ़ के फिर सो जाती हूँ. तो मैंने कैमरा उठा के मैंने चुपके 2-3 बातें भी की, पर मुझे अजीब सा लगा, मुझे हंसी आ रही थी अपने ऊपर. मैंने ट्राई की हुई है. इंशाल्लाह अगले मैं तैयारी कर रही हूँ कि वैसा ब्लॉग बना दूँ थोड़ा सा अपने एवरीडे
का जो ब्लॉग होता है इंशाल्लाह बनाऊंगी। So Mum's just saying how a lot of you have asked her to do like daily vlogs of how her life is and her routine is. So she's just explaining how she started it, but then she felt stupid. She felt a bit silly, like talking into the camera and talking about her middle of daily night. life. Yeah. So then, but she's gonna start. She's gonna try again and. Inshallah. I need to be a little bit brave. Yeah. So I'm gonna do it. It's not brave. You know what it is? It's just getting the hang of it. Yeah, that's You it. know, just- you know, like when Nakia hold the camera to me, I ask Nakia. I say, Nakia, come on, let's do the vlog. So Nakia, if Nakia joined me and she talking to me, then I found it like a natural way. Otherwise, it look like that I'm acting. I don't know. I can't take it. Like I need a little bit push. Practice, yeah. Push. Yeah. So yeah, inshallah, I really want to share my. And Sumaya is not a fan of it at all. She's like, please don't do it. Sumaya said, please don't do it. I told you, she is not a social, but she's not a social media person, but she got 7,000 followers, 6,000 followers on Instagram. Imagine if Sumaya was an influencer. That will She be got 30,000 hilarious. followers. That I think Sumaya would be very popular, you know. Very, very popular. Very, Yeah. very. So, okay, another thing, one of my YouTube follower or Instagram follower, they asked me that how you start your charity. So, let It me was move that literally little a bit. conversation So, with me. is my phone is ringing? No. Yeah, it is. No. It is ringing. I thought you told everyone to not ring Yeah, me. but I told them ring once, and if it's important call. No, this is not my volunteer. So I say if it's important call, I will answer it. Otherwise, don't ring me again. So basically, what happened when it's my start time? So that time is my ये मेरे जो charity के members के तरावी का बाद का टाइम होता है, तो वो पार्टी में जाते हैं, वो आके मुझे रिंग पे रिंग करते हैं और उससे मैं फिर कहती हूँ कि या अल्लाह कि मेरा इफ्तार का टाइम है, छोड़ो मुझे। तो आज मैंने ग्रुप मैसेज में मैसेज छोड़ा है कि आज के बाद तुम लोग मुझे एक कॉल करोगे, अगर मैंने आंसर किया तो ठीक है, नहीं आंसर किया तो दोबारा नहीं करोगे। अच्छा, तो क्या मैं बात कर रही थी ना? Charity. तो चैरिटी, मुझे ये क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा आता है, मुझे यूट्यूब पे भी बहुत आता है कि आपने ये चैरिटी किस तरीके से स्टार्ट की, क्यों आपने चैरिटी स्टार्ट की, क्या हुआ? तो उसका एक सिंपल सा आंसर है, मेरे बाबा फादर इन लॉ हमेशा सारी उम्र उसने तबलीग में गुजारी, सारी उम्र उसने चैरिटी की है। चैरिटी किसी से मांग के नहीं की, बस खुद अपने जेब से। लैंडलॉर्ड था बड़ा माशाल्लाह, काफ़ी यूके में भी काफ़ी घरों का मालिक था और पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी जायदाद का अल्हम्दुलिल्लाह मालिक था। तो अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बहुत ही ज़बरदस्त मुसलमान था, बहुत ही ज़बरदस्त, यानी कि मैंने कभी उस जैसा इंसान नहीं देखा, इतना वो इस्लाम के लिए जान देने वालों में से था। तो वो चैरिटी करता था, पाकिस्तान रजिस्टर्ड चैरिटी भी थी उसकी, और वो चैरिटी करता था मोर दीन के लिए। वो मदरसे खोलता था, मस्जिदें खोलता था, गरीबों की मदद भी करता था, लेकिन जैसे कि मदरसों के लिए किताबें ले ली और ज़्यादा मदरसों को और दीनी लोगों को वजीफ़े वगैरह देता था। अक्सर मैं उनसे बातों में ये उनके आखिरी जो ज़िंदगी के आखिरी कुछ साल थे वो उन्होंने मेरे साथ टिपिकल मेरे साथ गुजारे। तो मैं उनसे पूछा करती थी कि बाबा क्यों मदारस में और मस्जिदों पे पैसे इतने लगाते हो, गरीबों पे लगाया करो, गरीबों को एजुकेट किया करो, ये करो। हमारी दोनों की अक्सर इस बात पे तकरार भी हो जाती थी, पर बाबा को ये अच्छा लगता था और मुझे ये अच्छा लगता था कि मैं चाहती थी कि मदरसे और मस्जिदों से ज़्यादा नमाज तो लोग रास्ते में भी पढ़ सकते हैं। मेरा ये मौका था कि मस्जिद से ज़्यादा अच्छा है हम किसी गरीब को तालीम दें, उसका पेट भरे, उसकी रोज़मर्रा चीज़ों की उसके कपड़े तन पे दें। तो मस्जिद का क्या है, मस्जिद तो लोग
कहीं भी रास्ते में भी पढ़ सकते हैं। पर मैं हो सकता है आप लोग भी मुझे रॉन्ग कहें, पर हर इंसान की थिंकिंग का डिफरेंट तरीका होता है। तो ये मेरी थिंकिंग का तरीका था। एनीवे, जब बाबा 2 साल पहले वफात हुए, 2 साल तो पूरे नहीं हुए, 1.5 साल पहले वफात हो गए, तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ। मुझे बहुत चैरिटी में फुल करना चाह रहे थे, बल्कि उनका एक मदरसा था, वो मुझे बार बार कहते थे कि उसका इंचार्ज भी तुम लोगी, तुम उसको चलाओगी। मरते वक्त भी उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि इस मदरसे को तुम चलाओगी। पर क्योंकि वो मदरसा ऑल द वे इन मलकंड में है, थोड़ा सा मेरे लिए सख्ती है, कुछ फैमिली मैटर्स है कि मैं उसको चला नहीं सक रही हूँ। पर मेरी बहुत दिली ख्वाहिश है कि एक दिन उस मदरसे को मैं चलाऊँ इंशाल्लाह। So basically, my mum's inspiration for her charity was my granddad, my dad's dad, my mum's father-in-law. So they were pretty close because he's actually my mum's cousin. Yeah. In a weird, strange way. But so she was inspired from him. What? I just came from these poker type of things. What? Oh, this. Oh. Yeah, and then that's it. Then she was basically, I'll tell you, she forgot one bit. You know, literally, so Baba passed away. It was recent times. It was like a month after Baba passed away or something. And then me and my mum, we were just sitting down, and we were just talking about my grandfather. And then all of a sudden, she was like, "What if I start a charity?" That's literally how it started. She just said, "What if I started a charity?" And I was like, "Go, start it." And then it just started from there. She just. So basically, my children are my support. So firstly, what she did was she wanted to kind of have an idea of what the whole charity thing was about. So she went on a charity trip, right? To Morocco. Yeah, she went on a charity trip with Morocco, with a nice girl called Yaz. Yeah, she's a lovely girl. Yeah, she does a lot of charity work as well. I had a very good experience. Yeah. And I say, okay. She had a good experience, but at the same time there was certain other things as well. But after that, she was just like, you know what, I know what to do. So, and she went to Pakistan as well, and she found out that there were so many poor people in Peshawar, and she thought, why not help the ones at home first, you know? And that's how she started. जब मैंने बच्चों के साथ बात की, बच्चों ने मेरा नाम चैरिटी का सेलेक्ट किया। एक लड़की भी थी जानने वाली, उसने भी सेलेक्ट किया कि मामा रख दो नाम, क्योंकि तुम माँ। Yeah, she came up with it, innit? Yeah, she came up with the name, and then we liked the name, and then yeah. And then अभी मैं टोमेटो इसमें डाल दूंगी, इसी मशरूम में मैं टोमेटो डाल दूंगी और 2 कटे हुई चिली। अब इसको मैं अगेन 5 मिनट के लिए फ्राई करूंगी, स्टर करूंगी, और आपको बाकी का किस्सा सुना देती हूँ। सॉरी, आपको बोर तो नहीं कर रही हूँ कहीं? नहीं। अच्छा, तो मैं फिर ऐसे हुआ कि मैंने कहा चलो ठीक है, ये फ़लस्तीन में बाकी जगहों में बड़ी बड़ी चैरिटीज़ है, वो हमेशा हेल्प करती हैं, जाती हैं, बड़ी बड़ी चैरिटीज़ सीरिया में जाती है, यमन में जाती है। मैं भी इन लोगों के साथ गई हूँ कितनी दफ़ा, इस्लामिक रिलीफ के साथ भी मैंने इवेंट किए हैं, मेरे भी ह्यूमन रिलीफ डिफरेंट चैरिटी के लिए मैंने इवेंट भी किए और मैंने हेल्प भी की है काफ़ी इवेंट फॉर इस्लामिक रिलीफ, फॉर इस्लामिक रिलीफ। They're big. They're the first major charity. Muslim charity. लोग इवेंट करते थे और हम फ्री में जाके स्टॉल्स लगाते थे। Oh yeah, in और Cardiff. जितना भी स्टॉल से पैसा आता था, डिवाइन ब्यूटी से, डिवाइन बुटीक से, वो हम उनको डोनेट करते थे। So my mom's been doing charity for a while. Nearly from 18 years. पर मैं सिर्फ इस हद तक करती थी, जैसे कि वॉलंटियरली जाके स्टॉल लगाती थी, फिर स्टॉल में से जितना पैसा आता था वो हम दे देते थे। तो इस तरह काम लगा रहा। मैंने फिर ये सोच लिया कि जब मैं मोरक्को की ट्रिप से वापस आ गई, तो मैंने कहा इन मोरक्को वालों को, इजिप्ट वालों को, इन सब लोगों को हर दुनिया की हर चैरिटी जाती है और वहाँ डोनेशन देती है। पर ये इवन पाकिस्तान में भी, जहाँ पंजाब है, जहाँ सिंध है, वहाँ भी ये चैरिटी जाती हैं देती है। पर मैंने बहुत कम देखा है कि KPK में, जो पश्तूनों का इलाका है,
KPK खैबर पख्तूनख्वा, उसमें बहुत कम मैंने चैरिटी वर्क देखा है और बेचारे बहुत बैकवर्ड हैं और काफ़ी, यानी कि पेशावर मॉडर्न सी सिटी है पर उससे आप 10 मील उधर जाओ तो वहाँ पानी नहीं है, वहाँ कपड़ा नहीं है, वहाँ भूख है. And let me tell you one other thing as well. Peshawar, a lot of places in Peshawar, it's like a no man land. It's like a red zone. Yeah. People will risk their lives to Yeah. go there. So maybe that's why a lot of charities they don't go there. You know. तो मैंने पाकिस्तान में एक वेल नोन पर्सन है, उसने मुझे कांटेक्ट कर दिया था कि अगर आपको, क्योंकि किसी टीवी का एडिटर था, उसका नाम इस्माइल है पर मैं उसको कबीर कहती हूँ, बहुत अच्छा लड़का है और हमें ये यूट्यूब से, मैं अब इसके ऊपर धनिया काट दूँगी, तो हमें ये यूट्यूब वगैरह से हमारी पूरी फैमिली को लाइक करता था. मुझे उसने मैसेज किया, मैंने कहा मैं ऐसे पाकिस्तान में आ रही हूँ और मैं चैरिटी करना चाहती हूँ. उसने फिर वो एक बंदे का नाम मुझे बताया, पाकिस्तान का वेल नोन बंदा था, कि आप उससे मिले और वो आपको किसी जगह के बारे में बताएगा. तो उस जगह में काफ़ी गरीबी है. फिर उस बंदे के साथ मैं गई, मैंने उस जगह का विज़िट किया. उसको मेरी फर्स्ट जगह की टेलाबंद, ये पाकिस्तान का एक बहुत पसमानदा इलाका है जिसके लोग बहुत ही, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितने गयूर वहाँ के लोग हैं, कितने मोहब्बत वाले वहाँ के लोग हैं. They're really sweet people there. गरीब हो के उनको अल्लाह ने दिल दिया है कि उनका दिल, I remember mum took a medical camp over there and I was part of that medical camp, and then towards the end they gave us so much food, like हमारे लिए खुद वो बेचारे सफर कर रहे हैं और वो मेरे लिए फूड बनाते थे. कोई मुझे अंडे ला के देता था, कोई मुझे स्प्रिंग ऑनियन, कोई मुझे ये ज्वार का आटा. और मैं जब भी टेलाबंद से आती थी मैं घर आके रोती थी पेशावर में कि ये कैसे लोग हैं, अल्लाह इन पे मेहरबानी करे. उनके पास पानी के लिए वो 2-2, 3-3 मील दूर जाया करते थे, 3-3 मील दूर जाना. फिर मैंने चैरिटी शुरू की थी ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए. जब मैंने देखा, मैंने कहा ये तो ऑर्फन चिल्ड्रन छोड़ो, ये तो हर बच्चा यहाँ पे जलील ख्वार हो रहा है. मैंने वहाँ से शुरू कर ली. वहाँ पे एक वो डिजीज का क्या नाम है, लश्मीनिया डिजीज था, वो था, वो शुरू हो गया. उसके बारे में गवर्नर के पीछे से मैंने बात की, उनसे हेल्प की दरख्वास्त की, ये हेल्थ सेक्रेटरी से उनसे हेल्प दरख्वास्त की, काफ़ी कुछ किया. खुद जाके कैंप लगाया, डॉक्टरों को, अपने सारे फैमिली के डॉक्टर्स को इकट्ठा किया. फिर लोगों ने मुझे 5-6 लाख रुपए की दवाइयाँ दी. वो दवाइयाँ मैंने वहाँ पे अपनी टीम, मैंने एक छोटी सी टीम 10 दिनों में बना ली थी. 10 डेज में मेरी फर्स्ट टीम टेलाबंद से बनी. बहुत ही प्यारे लोग थे और मैं मेंशन करूँगी कि उसमें नवीद वन ऑफ द बेस्ट पर्सन है. अल्लाह उसको खुश रखे. वो 1.5 साल से मेरे साथ काम कर रहा है, 30 अबीदिल्ला. So mums, all the volunteers in Mum's charity, they work for free. They work for free. And listen to this, they're actually not that well off themselves. They're from the same kind of background, but they're all educated. They सारे well educated है, कोई भी अनपढ़ नहीं है, पर ऐसे इलाके में रह के उनके पास बेचारों के पास क्या है. तो मेरी चैरिटी ऐसी शुरू होगी. मेरी स्ट्रेंथ जो है वो मेरे मेंबर्स हैं. पैसा तो मैं अपनी फैमिली से भी खींच लेती हूँ, फ्रेंडों से भी खींच लेती हूँ, अपने फॉलोवर्स से भी कह देती हूँ, इवन अपने गोरे क्लाइंट से. मेरे गोरे क्लाइंट ने कितने मुझे वेल डोनेट किए हैं, उनसे भी मांग लेती हूँ. पैसा मांगना आसान है, लेकिन पैसे को सही जगह पे पहुँचाना बगैर किसी धोखेबाजी के, बगैर किसी कट्स के, ये मेरे मेंबर का काम है. और मैं अपने मेंबर्स के लिए तहज्जुद में उठ के दुआएं करती हूँ. जिन मेंबर ने मेरा पैसा सही जगह पे लगाया है, अल्लाह उनकी दीन और दुनिया को अच्छा कर दे. हमें कुछ 2-3 लोग थोड़े उल्टे सीधे भी मिले. There's been, do you know this charity? I don't think you lot know. There's it's quite a dirty game. Yeah. You know, there's a lot of like a lobby kind of thing. There's a lot of corruption in charity. Okay, so that's why Mum's charity, I'm so like proud of her, because I'm like, how does one woman
of the help of just a few people, like help so many people. Just it came from one conversation that I want to do something, and this is what it पर turned इसमें into. मेरे अल्लाह की बहुत मेहरबानी है। जब भी कोई ऐसा बंदा हमें मिलता है जो थोड़ा सा भी उसमें बेईमानी हो, अल्लाह ताला उसको मेरी टीम से निकाल देता है, खुद ही निकाल देता है। मैं नहीं निकालती। मैंने सबको कहा है कि मैं कभी तुम लोगों को टीम से नहीं निकालूंगी। तुम लोग रजिस्टर्ड मेरी चैरिटी के मेंबर हो, 35 मेंबर थे। मैंने कहा मैं नहीं निकालूंगी, लेकिन अल्लाह ताला खुद उनके लिए कोई सबब बना देते हैं और वो निकल जाते हैं। तो एक इस चैरिटी में अल्लाह भी मेरे साथ हेल्प कर रहा है। दूसरी बात ये कि मैं हर वीडियो शेयर करती हूँ। मैं यहाँ पे एक दाना भी दूँ तो वो मैं शेयर करती हूँ, इसलिए नहीं कि रियाकारी के लिए या इसलिए कि मैं लोगों को शो ऑफ करूँ या किसी और चीज़ के लिए। नहीं, इसके लिए नहीं। मैं इसलिए शो करती हूँ कि बाकी चैरिटियाँ कुछ भी नहीं दिखाती कि उन लोगों का पैसा कहाँ जाता है। अगर सिर्फ मेरा पैसा होता, मेरे बच्चों का होता, तो मैं चुपके से जाके दे, पर इसमें मेरे पूरे ख़ानदान का पैसा है, मेरे फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का, मेरे फॉलोअर्स का, मलीहा के फ्रेंड्स का, नाफिया के फ्रेंड्स का, इकबाल के फ्रेंड्स का। तो उस तरीके से अब मैंने ये किया है कि मैं हर चीज़ की वीडियो क्लिप बनाती हूँ, फिर उसके साथ रसीद रखती हूँ। मेरा एक पूरा रजिस्टर्ड बना हुआ है जिसमें मैंने हर चीज़ की इंदराज की हुई है। ये कुआं खुला है तो कितने का खुला है, कितने पैसे मैंने लगाए इस पर, ये चैरिटी इवेंट हुआ है तो कितना हुआ है। तो ये मेरी चैरिटी की कहानी थी, बाकी बाद में दिखाऊंगी। अच्छा, ये मेरा हो गया है मशरूम, वेरी हेल्थी। आप देख ले, इसमें ऑयल का जरा नज़र नहीं आ रहा। वेरी हेल्थी रेसिपी मेरी मशरूम तैयार है। और अगर आपको ये रेसिपी चाहिए हो तो मली एंड मम्मा मशरूम रेसिपी देख ले। वैसे मैंने आपको बता भी दिया है, लेकिन आप जाके देख के ये बना सकते हैं। ओके, ये मेरी मशरूम की रेसिपी है। अब मैं मखनी दाल बना। अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने मूंग की दाल कुकर में रखी थी, उसका ये हाल हो गया है। ओके, तो कब तकरीबन फिस गई है, पर अब 1 घंटा रहता है उसमें। और अब मैं अपने उबले हुए ये भी डाल दूंगी, साथ में मैं फ्लेवर के लिए थोड़ा सा गार्लिक भी डाल दूंगी, साथ में थोड़ा सा जिंजर भी डाल दूंगी। और दोबारा इसी स्लो कुकर में बनाती हूँ। अगर आपके पास स्लो कुकर नहीं है तो आप आराम से हंडी में भी इसी तरीके से बना सकते हैं। ये थोड़ा सा डाल दूंगी, साथ में जीरा और 1 स्पून ये भी डाल दूंगी, और उसको ब्लैक पेपर। और अब मैं नमक भी डाल दूंगी। और अब इसको दोबारा से मैं 30 मिनट के लिए रखूंगी, क्योंकि 1 घंटा इफ्तार में रहता है, तो 30 मिनट ये। So as you saw, after 30 minutes of boiling, she's put her kidney beans in there, a spoon of black pepper, a spoon of zira, and then a salt. And then and then leave it for boil for another 30 minutes. ये बैंगन का भी पोस्ट किया हुआ है ऑलरेडी, पर अगर आपको जाके वीडियो नहीं देखना तो मैं आपको इधर बातें करते करते इधर आपको बता दूंगी। हम बातें भी करेंगे और साथ साथ में ये बता दूंगी। बैंगन के भरते के लिए प्याज का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है, तो काफ़ी प्याज डालें। काफ़ी का मतलब ये है कि कम से कम दो प्याज बड़े वाले डाल दें। Why are you in your pajamas again? मैंने कपड़े बदले, बहुत प्यारा सा मलमल का सूट पहना। आज थोड़ी सी धूप निकली थी, पर मेरा हाथ इतना दुख रहा था क्योंकि ये मेरे हाथ का साइज बढ़ गया है। Actually, I don't think your YouTube family cares. Why? No, they don't care about whether you're in pajamas or okay. I thought about my hand. not. No, but what about your thing? ये असल में मेरे एक हाथ का साइज बहुत पतला है और एक साइज इस हाथ का, जो मेरा बार्ड साइज हाथ है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, वो मेरे नॉर्मल वाले हाथ से 3 गुना ज़्यादा सूजा हुआ है। तो मेरे सारे कपड़ों का जो स्लीव्स है वो एक स्लीव्स मुझे बहुत टाइट होता है। अब आइंदा इंशाल्लाह जब मैं कपड़े बनाऊंगी तो मैं टेलर को कहूँगी कि वो इसका एक स्लीव्स बड़ा रखा करे और एक स्लीव्स तंग रखा करे। That's going to be your adjustment. तो ये क्योंकि एक डिसेबिलिटी सी है ना। अच्छा, अब मैं बातें भी कर रही हूँ। मैंने बैंगन के लिए 2 पतले पतले तो नहीं, बस ऐसे डाइस किए हुए मैंने प्याज काट दिए और ये पके जाएंगे। और अभी मैं और नाफिया आपके साथ बातें करेंगे।
My daughter, she's beautiful, mashallah, and I'm proud of her. She's a doctor, and she's a very good doctor, alhamdulillah. She, you know, even when she was in F1, F2, she diagnosed everything. So no one diagnosed my hernia when she was in F1. She was the first one who diagnosed me that you had an insertion hernia. Yeah, so my daughter, I trust her medical side and her camera side as well. And Malia's as well. So Malia Malia is the best lawyer. No, forget about complimenting Malia. Yeah. Malia's gonna be like, what? It's just so when Malia had her disease, or condition, none of the doctors could figure out how to stop the clots in her legs. That's true. Her feet. And I don't know how, but alhamdulillah, I figured it out. And they say in the book, when we wrote this is something new illness, we're gonna say the cure is Dr. Nafia Khan. Did they? Yes. Oh, I don't know. But then Malia had fight with the surgeon. Yeah, he, So I don't not know. the surgeon, but the Consultant. consultant. The consultant, not the surgeon. The consultant. Wait, should I fix the... मैंने नाफिया को कहा, नाफिया हर वक्त कैमरे के साथ रहती है, कभी कभी हमारे साथ भी आके खड़ी हुआ कर। पर ये धुआं इतना होता है कि मेरा चेहरा पता नहीं आप लोगों को नजर भी आता है कि नहीं आता है। Stand up straight. She is much taller than me. I'm not taller than you. Much taller. असल में मैं पहले ना, मैं सच्ची बात बताऊं, जब मैं मोटी थी तो मैं उगदा थी। जब मैं मोटी थी ना तो मैं 5.5 थी. Trust me. You know why? Because when you're a little bit on the big side, right, you have little fat pants. क्योंकि मेरी heel इतनी हुआ कर. You know what? And I'm so much taller when I sit down. I'm literally the tallest when I sit down because I got such a big bum. Okay, मेरे ऑनियन अभी थोड़े से ब्राउन हो रहे हैं. आपको थोड़ा सा बता दूं कैमरे पे उठा के. No, I'll go back in it. इतने से हो गए ये बर्ती के लिए. तो अब मैं इसमें गार्लिक और जिंजर टीस्पून डाल रही हूँ. Amma, what was your mum's cooking? In your mum's cooking, one dish. What You was know your what? favorite dish in your mum's cooking? It's not lie, but my mom was. Trust me, it's not because she was my mom, but she was best in everything. She was the best wife. No. Wait, I'm coming. No, though. Okay. Let me just. I'm joking. Go on. You know, she asked about my mom cooking, but you know when my mom name come out from somebody's name, mouth, I just start the whole story, Alif Layla story. So my mom was the best human, the best I'm in the Muslim, camera now because mum's like, go in the camera. the best Muslim, best wife, best mother, and a best mother-in-law. What's wrong with you? My mom teach me everything, and my mom acting. My mom told me. How am I doing with my acting? The woman who is best toward their daughter-in-law, that woman is the best to Allah. Yeah. And I'm trying my best as well. I'm trying my best. But seriously, my grandmother was an amazing woman. Amazing woman. Amazing. Like if you want to, now I know why my mom was so inspired by her. She was just amazing. like, You know what? so laid back Yeah. and so chilled and so cool. Yeah. She was just amazing. You know what? She was like a kid with a kid. Like Yeah. my personality is like her personality. When she used to sit with a kid, she used to say like, "What's up?" Yeah, she's like, what's up? What's up? With Siddiq. And you know, she used to. Siddiq and her had a really like close Good relation. Okay, I'm cutting 2 tomatoes on top of this onion now, okay? And like when she sit with a ulama, then she become a alima. She goes strong. She can say strong things about Islam. She did a Quran Tashri. She did, mashallah. She was very knowledgeable. Very knowledgeable. When she sit with the poor people, she become like a beggar. She knew 5 different languages. Yeah. If she saw something in front of you, like if she wanted to learn something, she'd pick it up straight away. Pick it up straight away. Yeah. Like, you know, one day she say, if you stand someone by front of me and say, make something like that, like a doll or something like a sewing type of thing. She said, I can make it. And yeah, she did.
And my father used to say, Zara che panim pakiki na gam khogi. Them two had a really They were Layla Majnun. Romeo Juliet. Well, not Romeo Juliet, but they would die. My grandfather Died. because he missed her. Yeah. He literally died of like broken heart syndrome. He died of a broken heart. He was so upset when she passed away that he just died. He had a heart attack after 3 days and he just But it said, was a silent I want to heart die. attack. That's it. That's nobody knew. Yeah. And you know, one day he was reading Tasbih all the time. My father used to recite Tasbih. And I say, what are you reading on Tasbih? He said, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. I say, oh, okay. And I say, I thought you reading Zara because my mom name is Zara. And I say, I thought you reading Zara. He said, let me tell you the truth. Sometimes I skip and I say Zara. That was he was obsessed. He was obsessed with it. He actually brings my mother's grave khawra. Yeah, the soil from my soil, from and he kept it in the jar and he sleep with that all the time. Oh my God! He only lived couple of months. And you know what everyone knew? Like in the Pathan culture, right? Like the man, if you have the man That's like that dies over their wife and is really loving, they're known as like they're called dala, which is not a good word. So, But my father said, but everyone knew about it and they respected their love. Yeah. They really, really admired their whole love That's for it, one yeah. another. Okay, now you will show. Okay, now you ask me about my mom food. So my mom food, name it, and I love it. I love my mom food. I think I know what your favorite is. Go on. Langar ke, Langre ke, aga chicken maga curry be chola or mata curry wala rote. So dalidar yes. Dalida marke. So what my mom used to do, like when she was cooking fresh meat, and you know the fresh meat salan like shurba, I used to like that. And my mom just, you know, we call that lagre. So my mom just put a little bit chili flakes, the shurba, and you know, like pieces the roti. And I used to love that. Oh, yeah. Okay, I'm gonna go behind the camera. Yeah, sure. Bye guys. My 2 tomatoes are halfway cooked. I put a quarter of chili powder, quarter spoon, half a spoon my mixed masala, quarter spoon haldi powder, quarter spoon curry powder. That's all I put in. And now the magic starts. Now I'm gonna put half a tin my tomato tin as well. So I put 2 tomatoes, but half a tin because it's really nice for the color and for the taste as well. So tomato tin or tomato paste is the best to put in this. And now look, I grill my veggie. So मैंने अपने बर्फी के लिए अपने बैंगन साहब को 7.7. एक दफ़ा ऐसे हुआ, मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, ओके, बस टाइम थोड़ा रहता है, मेरे मखनी दाल भी बनने वाले हैं। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मुझे मेरी अम्मी ने कहा था कि लोगों को ओए की पराया भी कोई हो तो तुम उसको भाईजान कहोगी, भाई करके बुलाओगी। ये बहुत बुरी बात है कि तुम कहती हो वो आदमी, वो सड़े, तो ऐसे नहीं करोगी। जब भी किसी के बारे में बात करोगी तो कहोगी भाई। मैंने कहा ठीक है। हमारे जहाँ हम रहते थे वहाँ पे कहीं चोर आ गया था, तो वो जो लड़की थी वो मेरे स्कूल में पढ़ा करती थी, आशी नाम था उसका। तो मैं घर आके, तो मेरे ख्याल में मैं क्लास 8 में थी, बड़ी लड़की थी, 13-14 साल की थी। मैंने आके घर में कहा अम्मी को, अम्मी वो आपको पता है आशी के घर चोर भाई आया था। सब वहाँ बैठे थे तो सब हंसने लगे, कहते चोर को भी कोई भाई कहता है। मैंने कहा वो चोर भाई ही था ना, क्योंकि अम्मी ने जो कहा था मुझे कि हर किसी को भाई करके बुलाते हैं। तो मैं
जब यहाँ पे आ गई तो मैंने ये किस्सा अपनी पंजाबी फ्रेंड्स को बताया। तो मेरे पंजाबी फ्रेंड्स जब किसी चोर की बात करते हैं ना तो कहते हैं चोर भाई। तो ये चोर भाई अब पक्का हो गया। पतले पतले से इसके ऊपर 2-3 चिली का डालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बर्ते में बहुत ही ज़बरदस्त। और ट्रस्ट मी, जब आप ये बर्ता खाते हो ना तो आपके मुंह में पानी 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 आ जाएगा। और ये अगेन हेल्थी रेसिपी है। इसमें ऑयल का इस्तेमाल कम कर लें। मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून डाला है, पर आप अगर चाहें तो 2 टेबलस्पून भी ना डालें। और इसको इसी तरह ये टोमेटो सॉस में बना लें। ये मशहूर अफ़गानी फूड भी है, पंजाबी फूड भी है, इंडियन फूड भी है। तो मेरा बर्ता भूनता जाएगा और मेरी जो मेन रेसिपी है मखनी दाल, उसके लिए मैं तैयारी करती हूँ। पर इसको भूनना बहुत ज़रूरी है। इसको तब तक आप भूनेंगे जब ये बिल्कुल पेस्ट ना बन जाए। Oh, I've been craving your barta. हाँ? I've been craving it. Yeah, I was craving yesterday as well. मैं कभी कभी क्या करती हूँ कि मैं ऐसे जो इसका छिलका होता है सड़ा हुआ, वो इसके अंदर डाल देती हूँ, तो इसमें वो बारबेक्यू वाला जैसा एक टेस्ट आ जाता है। मैं बाद में ये फेंक दूँगी, पर ये मैं इसमें पका लेती हूँ साथ ही, क्योंकि ये ग्रिल हुआ होता है। ये हल्की आंच पे पकता जाएगा, मैं इसको पीछे रख दूँगी। तो ये मेरा रायता मेरा बर्ता तैयार है बैंगन का। आप भी बनाइए। और अगर आपको मेरी इस रेसिपी में सही नज़र नहीं आया, सही बातों में पता नहीं चला, तो मली एंड मामा के साथ बैंगन का बर्ता टाइप करें, आ जाएगी रेसिपी। ये तैयार है, इसको मैं अब डालती हूँ और अब मखनी दाल की तरफ चलते हैं। तो मेरा बैंगन का बर्ता भी तैयार है, मेरे मशरूम भी तैयार है, एक चिकन परमजान भी है, वो भी तैयार है। आपको उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। पर आज का मेन जो रेसिपी थी वो थी मखनी दाल की और फिर चिकन स्टर फ्राई की। चिकन स्टर फ्राई तो मैंने आपको बता दिया है। मखनी दाल का मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ। बाकी तो थोड़ी सी गपशप भी हमने लगाई। तो मखनी दाल जैसे मैंने आपको कहा कि बन रही है स्लो कुकर पे। एक दफ़ा मैंने मखनी दाल को स्लो कुकर पे 30 मिनट रखा, उसको बनाया, उसका गंदा पानी निकाल दिया, फिर मैंने पानी डाल दिया, फिर मैंने उसमें राजमा जो किडनी बीन्स है वो डाल दिए। सो अगर 2 कप दाल है तो 1 कप वो होना चाहिए किडनी बीन्स, वो डाल दिया। और फिर मैंने 30 मिनट फिर रख दिए। वो तो अभी बन रहे। मैंने थोड़ा सा गार्लिक डाल दिया, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अदरक, 2 स्पून ऑयल मैंने वो डाल दिया। वो तो पके जा रहा है। अब जो मैं मसाला तैयार कर रही हूँ वो ऐसे कर रही हूँ। मैंने लिए हैं 3, 4, 5, 6 टमाटर। 6 टमाटर को मैंने इसमें पानी में डाल दिया है और इसको मैं बॉईल करूँगी इस पे, ताकि इसका छिलका निकल आए। Okay, so we're gonna boil 6 tomatoes into the pan while the dal is already being cooked. Yeah. और Everything is being done. It's just the dal makhni thing. ये तो कुक होता जाएगा। इसको मैं दूसरे चूल्हे पे रख देती हूँ। Yeah. Yeah, you can start taking it. So Mum just placed it on the other hob while she makes. आज मैं यहाँ मसाला तैयार करती हूँ। तो मैं First she makes the masala for the makhni dal. क्योंकि ये मखनी दाल है, मखनी तो मक्खन का डालना तो ज़रूरी है। तो इसमें मैं डालूँगी बटर। मखनी दाल का मतलब होता है कि बटर इसमें डालते हैं। तो मैंने इसमें तकरीबन क्वार्टर, जो ब्लॉक होते हैं ना, उस ब्लॉक का क्वार्टर मैंने बटर डाल दिया। So a quarter of the block butter, just put it in the pan. Yes. So makhni stands for butter. Yes. मखनी का मतलब होता है बटर बेसिकली। There's makkan in it. Yeah, मक्खन है। और इसमें इसी वक्त अभी पूरा मेल्ट नहीं हुआ, मैंने थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट में थोड़ा सा हल्दी मिक्स कर दी है। So she's just added a bit of haldi with the garlic paste. Okay. And she's added it just about now, before the whole butter melts. गार्लिक पेस्ट के साथ मैंने इसको मिक्स कर दिया है। ये इसका डाल दे थोड़ा सा और इसको हल्की आंच पे पकाते जाए। तो अभी मैंने टोमेटो को बॉईल कर दिया। अब इसका ये सारा छिलका मैं निकाल दूंगी। So Mum's just said that she's boiled the tomatoes and she's going to peel the peelings
peel the tomatoes. No, basically look, it's so easy. Like I only boil it like for 2 minutes. And look, it's so easy to take the. This is for makhani dal. This is important to take all the skin off. अभी जो दाल थी, वो जो दाल और वो उसको अच्छी तरह से पीस के मैंने गाढ़ा सा ऐसे बना दिया। मेरी दाल पक गई है। अब इसके लिए मैं मसाला तैयार करूँगी और मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी। When you put it off the hob, the dal, just stir it for about 20 minutes. Cook and stir. Cook and stir on the hob So it it's turns make into like that. a proper paste. Yeah. So after this, my garlic and my garlic, I put a little bit ginger, okay? Just a little bit, hint. I peel all my tomato. So I'm gonna make a puree out of that. अभी मैं इसके ऊपर क्या डालूंगी कि मैं इसके ऊपर अभी अपना मिक्स मसाला डाल दूंगी और ये चिली पाउडर डाल दूंगी। 1 स्पून चिली पाउडर डाल दिया। इसको भी अच्छी तरह से भून लूंगी। और अब जो मेरी टोमेटो प्यूरी मैंने बनाई है उसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको भी मैं अच्छी तरह से भून लूंगी। इसको तब तक मैं पकाऊंगी जब तक कि अच्छी तरह से भून ना जाए। तो अभी 10 मिनट के लिए मैंने प्यूरी को पकाया। दाल मखनी की प्यूरी को अच्छी तरह से भून लिया। अब मैंने अपनी दाल इस प्यारी सी कढ़ाई में डाल दी है। इसमें हम सर्व करेंगे। दाल भी मेरी गरम है। सो मैं अब इस प्यूरी को इसमें डाल दूंगी। तड़का मैं अब तैयार करूंगी दाल के लिए। तो मैंने दो मैंने डाल दिए हैं स्पून ऑयल के और 1 मैंने डाल दिया है स्पून घी का, क्योंकि मैं हमेशा हाफ एंड हाफ करती हूँ ऐसे। So this is the tarka for the dal. So you This put is the tarka 2 spoons for my oil dal. for 1 spoon ghee. और अब इसमें ये मेरा तड़के के लिए तैयार हो रहा है। 1 स्पून घी, 2 स्पून ऑयल। तड़का बहुत नाइस लगता है कि जब तड़का अच्छी तरीके से हो जाए। ब्लेस यू यरहमुल्लाह। अब जो बचा कुचा गार्लिक था वो मैं डाल दूंगी। और इसी में मैं अपनी 3 मिर्च भी पतली पतली काट दूंगी कि ये बिल्कुल जैसे कि फ्राई से हो जाए चिली। तड़के में ग्रीन चिली फ्राई करना बहुत ही प्यारा लगता है। इसमें मैं सिर्फ 1 मिर्च बड़ी वाली भी या छोटी वाली जो ऐसी भी साइज़ की आपके पास है, जो ऑलरेडी मिलती है सूखी ड्राई रेड चिली, वो भी मैं डाल देती हूँ। तो इससे तड़के में बहुत ही मज़ा आता है। मैं 4 डाल दूँगी। So these are dried chilies then, I guess. ये ड्राई चिली, इसका थोड़ा सा बस मज़ा भी होता है, थोड़ा फ्लेवर भी आता है और ये भी होता है। ये कभी लंबे लंबे भी आते हैं, कभी ऐसे मेरी तरह गोल मटोल भी आते हैं, लेकिन ये बहुत ही नाइस होते हैं। इससे जो दाल का तड़का है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। मेरा तड़का तैयार है, मेरी दाल तैयार है और अब आप देखिए मैं इसके ऊपर अपना तड़का डालूंगी। इसका तो मज़ा ही और है लड़कियों और लड़कों भी। तो ये मेरा दाल मखनी तैयार है। इसको कहते हैं फ्रेश तड़के का दाल। और अब मैं इसके ऊपर पतला पतला सा धनिया भी काट दूंगी। कैसे लगा? मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं? कल किसी ने कहा था प्लीज़ रोज़ा इफ्तार से पहले मत पोस्ट करें वीडियो, क्योंकि रोज़ा रखना मुश्किल हो जाता है।
पर मैं इसलिए पोस्ट करती हूँ कि मैं कहती हूँ अगर किसी को बनाना हो तो वो बना ले। आज तो मैं लेट हो गई हूँ, आज तो मेरा अब 9 बजे लोड होगा। ये मेरा मखनी दाल तैयार, तो मेरी मखनी दाल भी तैयार है, मेरा चिकन स्टर फ्राई भी तैयार है, मैंने और भी बाकी चीज़ें तैयार की आपको दिखाई और आपसे गपशप भी लगाई। Until next vlog, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह पामान। This is the mushrooms, makhni dal, parmesan, barta. Sorry, what's that? Batanga. Chicken stir fry. Oh, so then that's chicken stir fry.